तो आज की क्लास बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, एक वेबिनार है फॉर द पीपल who wanted to join the field of networks, wanted to join the field of network security and the cyber security. आप सभी लोगों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्लास होगी, एक हेल्पफुल क्लास होगी कि किस तरह से आप लोग फ्रॉम द स्क्रैच, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप स्क्रैच से किस तरह से इस फील्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर कुछ यहाँ पे हमारे साथ BS और MS के रिसर्चर्स भी क्लास में मौजूद हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं कुछ नाम जिन लोगों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया था। और कुछ हमारे साथ जैसे आप हैं इंडस्ट्री के लोग भी मौजूद हैं जो नेटवर्क्स के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। तो डिफरेंट तरह के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इसी वजह से मैं एक बड़े जनरलाइज्ड और सिंपल वे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा नेटवर्क्स के हवाले से, नेटवर्क सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी कि किस तरह से आप लोग इस रोड मैप को फॉलो करके नेटवर्क्स के अंदर आप एक अच्छी पोजीशन गेन कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम पोजीशन, बिकॉज हमारी इस क्लास में ज़्यादातर जॉब सीकर्स के साथ साथ रिसर्चर्स मौजूद होते हैं, तो नेटवर्क्स के अंदर नेटवर्क्स की ऑटोमेशन, चूँकि आजकल हर चीज़ AI बेस्ड ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, तो आप लोग किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन बेसिकली दे सकते हैं, कंट्रीब्यूशन ऐड कर सकते हैं नेटवर्क्स के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन के अंदर, नेटवर्क्स ऑटोमेशन की तरफ, and for providing level 3 to level support for industrial projects as well. So all of these things need some sacrifices, need some initiatives to take. So the course which I have offered here, after passing out 100 of students from my last 2 to 3 years of teaching in networks, and there are many students who are doing research in the networks field after passing out from CCNA here. And apart from that, many of the students are also working in industry in very good positions, being a network engineer, architecture deployment, network support, IT support, and many other positions. Some of them are also the part of this lecture as well. Some of them are present here physically. Some of them have joined through the Skype. This is very important thing actually, for remaining in contact with your teachers, remaining in contact with your instructors after even being a part of the industry, because it always helps you, it always supports you once you got any sort of problem, once you got any sort of issue, then it might help you. Yes, Afaq? Afaq, you have any question? Okay, I think it, okay, all right. So I will be entertaining all of your questions at the end of the session as well. So don't worry about that. Okay, so now let's move towards before showing display of some notes which I have made and some documents. I will generally let you know, guys, that as you know that day by day networks and the infrastructure is developing, and for that development many things are going for the automation. Networks are going for the automation as well. Machine learning, artificial intelligence, and these robotic concepts are going to the part of our daily life. So that's why Cisco has also take part in this and jump into this scenario as well. So for that, Cisco has already after this August 2024, the persons from you who will be giving a certification exam of CCNA, they should have a good knowledge of network automation and machine learning concepts as well, because it's the part of your exam. And apart from that, some in even CCNA routing and switching, there are some main security topics are also the part of that. So that's why इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये जो कोर्स, एक नया कोर्स, नई आउटलाइंस मैंने बनाई है, बेसिकली वेरी अपडेटेड, और इसको रन टाइम पे मज़ीद भी चेंज किया जा सकता है, इसमें मैं मॉडिफिकेशंस करूँगा। इस आउटलाइंस के अंदर वो तमाम तर टॉपिक्स मौजूद हैं जो कि हम एक तो इंडस्ट्री में डिप्लॉयमेंट के अंदर यूज़ करते हैं फॉर द एसोसिएट लेवल स्टूडेंट्स,
एंड उसके साथ साथ CCNA की सर्टिफिकेशन के लिए आप लोगों को इन तमाम तर टॉपिक्स का अंदाज़ा, इन तमाम तर टॉपिक्स का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि अब जो अपडेटेड CCNA के डंप्स आएंगे आप लोगों के लिए, उन डंप्स के अंदर भी ये तमाम तर MCQs और ये डाटा ऑटोमेशन का और मशीन लर्निंग का ऐड होगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस. सो अभी जनरली हमारे जो मैंने डेट वगैरह नहीं चेंज की, CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग हमारा जो बैच है ये बेसिकली स्टार्ट होगा, लेकिन इसके साथ साथ इन पैरेलल हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी. ठीक है, नेटवर्किंग प्लस साइबर सिक्योरिटी, इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे. उसके लिए पहले मैं जनरलाइज्ड अंदाज में आप लोगों को नेटवर्किंग और नेटवर्क सिक्योरिटी के हवाले से एक तमाम तर ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा, और फिर उसके बाद हम लोग मूव करेंगे इन डिटेल व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन ओवर नेक्स्ट 3 to 4 months. Previously we were doing these classes and the course was designed for 3 months, but for this batch I will make it for the 4 months. Those students will enroll in this CCNA security. I will engage you for the 4 months, and for the 4 months not just me will be instructing all of you guys. मैंने इसमें कोई नई चीज़ें ऐड इस तरह से आपकी क्लासेस को इंटरेक्टिव बनाया है कि मेरे साथ, चूँकि मेरा ज़्यादातर मेरी जो डिप्लॉयमेंट्स, मेरे प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल होते हैं, जहाँ पे इंडिया से भी बहुत सारे रिमोट इंजीनियर्स लेवल 3 लेवल 4 CCIE लेवल के, और उसके साथ साथ मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, हर एक फील्ड के स्पेशलाइज्ड लोग मेरे साथ, मेरे ग्रुप में मेरे साथ वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं. तो आप लोगों के इस कोर्स के अंदर मेन इंस्ट्रक्टर, it will be my responsibility to complete the batch, to complete the outlines, but apart from me there were some other specialized in all of those mentioned fields which I will mention in the course outlines later. Some of the experts I will also hire them, I will also engage them for some dedicated sessions for you guys. ठीक है, ये एक नया मैं इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए आप लोगों की इस क्लास को, कुछ वाइट पीपल भी होंगे, कुछ इंडियंस भी होंगे, कुछ यहाँ पाकिस्तान के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्चर्स जो मेरे साथ इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम उन तमाम तर लोगों को इंगेज करेंगे आप लोगों के लिए. और उसमें अपार्ट फ्रॉम दीज 3 मेन क्लासेस, जैसे कि आप लोगों की CCNA की क्लासेस हुआ करेंगी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 7:30 PM to 9 PM. ठीक है, ये 3 डेज़ आप लोगों की क्लासेस के हुआ करेंगे, और इन 3 डेज़ के अंदर आप लोग नेटवर्क्स फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ साथ हम या तो इन डेज़ के अंदर भी, जब मेरी इंडस्ट्रियल कोई मसरूफियात हो गई या कुछ प्रोजेक्ट के अंदर, तो उन डेज़ के अंदर भी मैं एक इंडस्ट्रियल पर्सन को इंगेज कर सकता हूँ, या फिर हम वीकेंड के अंदर, चूँकि ज़्यादातर वो लोग वीकेंड के अंदर फ्री होते हैं, तो वीकेंड में 1 hour 2 hours के मैं डेडिकेटेड सेशन, एंड आई विल अनाउंस दैट 1 to 2 days अर्लियर आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग सब अपने स्केड्यूल को उसी तरह से अरेंज कर लें. उसमें फिर हम लोग आपको अपडेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में गाइड करेंगे, जिसमें चूँकि नेटवर्क्स की जब बात की जाती है, अभी हमारे पास आपके सामने प्रीवियस क्लास में भी एक बैच ऑफ स्टूडेंट आया, जिसमें वो लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि उनके सीनियर्स, उनके कज़न्स, उनके फैमिली मेम्बर्स जो कुछ US में हैं, कुछ UK में हैं, कुछ बहरीन में हैं, जो कि उनको कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप नेटवर्क्स के साथ साथ लिनक्स का नॉलेज, और लिनक्स के साथ साथ आप लोग साइबर सिक्योरिटी कि नेटवर्क के अंदर किस तरह से आपने सिक्योरिटी और ऑटोमेशन, ये नॉलेज आप एटलीस्ट इंट्री लेवल नॉलेज आप लेके आएँ, तभी एक आप अच्छी पोजीशन और आजकल के इस करंट सिनेरियो के अंदर एटलीस्ट सर्वाइव कर सकते हैं. सो कीपिंग इन माइंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मैंने ये तमाम तर जो है एक इनिशिएटिव ली है आप लोगों के लिए, और फिर उसके लिए हम लोग इस तरह से बेसिकली फॉलो कर रहे होंगे इस रोड मैप को. अच्छा, इसमें फिर सबसे पहले अगर हम इनिशियली, अगर मेरी स्क्रीन आप लोगों के लिए विजिबल हो, जो कि आप कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि सम आर एक्सपर्ट्स हियर who are here just to take the dedicated classes for their research,
ठीक है। कुछ यहाँ पे एमएस के रिसर्चर्स बैठे हुए हैं, कुछ बीएस के रिसर्चर्स बैठे हुए हैं, जो कि इनमें से कुछ नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर अपनी रिसर्च कर रहे हैं, कुछ एसडीएन सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के अंदर कर रहे हैं, और कुछ नेटवर्क ऑटोमेशन के अंदर कर रहे हैं। लेकिन वो उनको एक रोड मैप चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये तमाम तर नेटवर्क्स और साइबर सिक्योरिटी के लिए ये जो CCN है, बेसिकली सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, ये एक गेट है आपके लिए, ये गेटवे है। यहाँ से बेसिकली आप पास होंगे, ये एक एंट्री पॉइंट आप कह सकते हैं। यहाँ से जब आप एंटर होंगे और इसके साथ साथ जब आप सिक्योरिटी को भी सीखेंगे, तो उसके बाद आपके लिए रोड्स ओपन हो जाएंगी। At least you can get the entry level job in industry as well, you can do your research as well, and apart from that you can do CCNP, CCI to be a champion for providing not just level 1, level 2 support, but level 3, level 4 support engineer you can also become after being doing CCNP and CCNP and core and the things like that. ठीक है। तो CCN ने जिनको बिल्कुल आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, रैंडमली जस्ट मेरा इनविटेशन देख के आ गए, CCN ने स्टैंड्स फॉर सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट्स। अब ये कोर्स बेसिकली आप लोग, वन ऑफ द चैम्पियन टेक्नोलॉजी है सिस्को, वन ऑफ द चैम्पियन वेंडर है सिस्को, एक वेंडर है। सबसे पहले अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें कि सिस्को क्या है, तो जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं हुआवे का, ठीक है, इसके अलावा आपके पास आईफोन है, ठीक है, सैमसंग, मुख्तलिफ वेंडर्स हैं जो इन मोबाइल्स को बनाते हैं। इन मोबाइल से आप जब कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, बैंक्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़, हर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके घरों में भी ये राउटर्स लगे होते हैं, ठीक है, कुछ इंडस्ट्रियल होते हैं और कुछ सिंपल कम्युनिकेशन के लिए होते हैं। तो जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन एक सोर्स, एक डिवाइस, एक मोबाइल से एक पैकेट ओरिजिनेट होना, उसके बाद कवरिंग अ long and huge distance including different areas, different cities, different countries and the continents, वही पैकेट, वही मैसेज, वो इंफॉर्मेशन किसी डिफरेंट कंटिनेंट में किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। तो इस मैसेज के ओरिजिनेट होने तक, बल्कि इवन मैसेज बनता कैसे है, वो पैकेट उससे में उस डिवाइस से ओरिजिनेट होने से लेकर OSI मॉडल की 7 लेयर्स को अबूर करता हुआ उस डेस्टिनेशन पॉइंट के ऊपर कैसे पहुंचता है और वहाँ पे कैसे डिक्रिप्ट होकर उस डिवाइस तक पहुंचता है। तो ये पूरा इस मैसेज, आमतौर पर हम तो यही समझते रहते हैं, हम जिन लोगों को नेटवर्क्स नहीं पता होता, यहाँ से मैसेज हमने लिखा, उड़ गया हवा में और फिर डेस्टिनेशन तक पहुँच गया। हालांकि ऐसे नहीं होता, इसका प्रॉपर एक चैनल होता है, एक मैकेनिज्म होता है। तो वही हम मैकेनिज्म को बेसिकली फॉलो करेंगे कि वो इन्फॉर्मेशन जिसके ऊपर हम सिक्योरिटी के लॉज अप्लाई कर रहे हैं, जो हम साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सीख रहे हैं, जो नेटवर्क सिक्योरिटी सीख रहे हैं, उन नेटवर्क्स और उन प्लेटफॉर्म से वो डाटा पास कैसे होता है जिसको हम सिक्योर बनाने जा रहे हैं। सो फॉर दैट यू मस्ट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ नेटवर्क्स। तो अब ये जो हम सिस्को की बात कर रहे थे, सिस्को बेसिकली एक वेंडर है जिसने ये नेटवर्किंग डिवाइसेस बनाई हुई हैं, इंक्लूडिंग राउटर्स, स्विचेस, फायरवॉल्स, एक्सेस पॉइंट्स, ठीक है। इसके अलावा और मल्टीपल इनकी SDN इनेबल्ड डिवाइसेस हैं, मिराकी डिवाइसेस, ठीक है। ये वो तमाम तर डिवाइसेस हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और ISPs को आपस में मिलाने के लिए हेल्पफुल होती हैं, ताकि वो पैकेट, वो इंफॉर्मेशन, वो मैसेज जो कि किसी एक सोर्स से ओरिजिनेट हुआ, उसको किसी एक डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सके। उसके लिए ये एक वेंडर की हम लोग बात कर रहे हैं, एंड दिस इज द चैंपियन ऑफ ऑल वेंडर्स। इसके अलावा जूनिपर है, फोर्टीनेट है, हुआवे, पालो आल्टो, टेंडा, TP-Link, बहुत सारे और भी वेंडर्स हैं। वेंडर से मुराद होता है OEMs, जो कि इन डिवाइसेस को बनाते हैं और सेल करते हैं। आपके सामने ये रैक के अंदर ये, और आप ये जो फिजिकल स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आपको सबको ये राउटर्स नज़र आ रहे हैं, स्विचेस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे फायरवॉल्स नज़र आ रही हैं, जिनके ऊपर आप प्रैक्टिकली भी काम करेंगे। और ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, ये डिवाइसेस हैं बेसिकली जिनके ऊपर आप लोग काम करने जा रहे हैं, फायरवॉल्स और स्विचेस, ठीक है, एक्सेस पॉइंट्स, वायरलेस राउटर्स, ठीक है, और फिर ये एंड डिवाइसेस। इन ये बेसिकली फिजिकल स्टूडेंट्स को ये नज़र आ रही हैं, रैक माउंटेड, रैक के अंदर ये तमाम तर डिवाइसेस डिप्लॉयड हैं, जिनके ऊपर ये लोग काम करेंगे, प्रोटोकॉल्स चलाएंगे, इनकी कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे,
और इनके ऊपर चलने वाले तमाम तर प्रोटोकॉल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, थियोरेटिकली एंड एज वेल एज प्रैक्टिकली, सो दैट एक तो ये इनको इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन का अंदाज़ा हो जाएगा, और इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं उन प्रोटोकॉल्स का इनको अंदाज़ा होगा। और फिर फ्रॉम द स्क्रैच यू गाइज विल बी एबल टू डिप्लॉय द प्रोजेक्ट फॉर एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द कंपनी। ठीक है, आप प्रोजेक्ट्स लेके उसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं। और फिर फॉर द रिसर्चर्स, जब आपको किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी भी एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी हो, सो फॉर दैट यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द एग्जिस्टिंग थिंग्स इन डिटेल एज वेल। रिसर्च का मतलब ही यही होता है कि किसी एक इंटरेस्टेड टॉपिक को आप चूज करें, उसके ऊपर सर्च करें पहले कि कितना काम होया हुआ है और ये काम कैसे करता है, फिर फॉर यूजिंग योर क्रिएशन एंड इनोवेशन आप लोग उस पर देखेंगे किस तरह से आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरह से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज द वे द रिसर्च टेक्स प्लेस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस रोड मैप को फॉलो कर रहे होंगे। तो बात हम कर रहे थे सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट्स। इस कोर्स को करने के बाद मेजर आपको सिस्को की डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन होगा, बट अगर हम अपार्ट फ्रॉम सिस्को बात करें, कॉन्सेप्ट्स, प्रोटोकॉल्स, ऑल ऑफ दीज प्रोटोकॉल्स व्हिच वी विल बी डिप्लॉइंग इन सिस्को डिवाइसेस, these will not just be Cisco specific or based on just Cisco devices. All of these will be, maximum of these will be open standard protocols. Like अगर हम VLANs की बात करें तो एक VLAN है, एक ISL है, इंटर स्विच लिंक, तो दोनों ही प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन एक जो है ओपन स्टैंडर्ड है VLANs, किसी भी आप प्रोटोकॉल के ऊपर किसी भी डिवाइस के ऊपर चला सकते हैं, किसी भी वेंडर के ऊपर। एक है जस्ट Cisco जो है ना स्पेसिफिक है। इसी तरह से HSRP और VRRP प्रोटोकॉल्स हैं, तो HSRP जो है सिस्को स्पेसिफाइड है, VRRP ओपन स्टैंडर्ड है। तो हम उस तरह के तमाम प्रोटोकॉल्स पढ़ रहे होंगे जो आप डिफरेंट वेंडर्स के ऊपर भी अप्लाई कर रहे होंगे। तो उसके बाद फिर आपको जस्ट एक चीट शीट आपके सामने हो तो आप किसी भी वेंडर के ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हर एक कंसेप्ट को आप डिटेल में एक्सप्लोर कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, अब फिर कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के व्हाट आर द प्रीरेक्विजिट्स ऑफ CCNA। अगर आप लोग आप में से जैसे आप लोग आए हुए हैं, आप लोगों का फर्स्ट डे है ज़्यादातर लोगों का इस न्यू बैच में, तो क्या प्रीरेक्विजिट्स हैं? प्रीरेक्विजिट्स मीन दैट आप ये कोर्स करने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, then the students who did just matric and they studied computer science, they also have become the champion. So the prerequisite for the CCNA is how you have polished yourself to being punctual, to take the things in as a challenging. अगर आप लोगों को ये दो चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में शामिल हैं कि चीज़ों को आप चैलेंजिंग कितना लेते हैं, क्योंकि नेटवर्क सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपको ट्रबल शूटिंग फेस करनी पड़ती है। आप लोग रन टाइम के अंदर बहुत सारे एरर्स आते हैं और जिनको रिजॉल्व करते हुए बाद का दिन लग जाते हैं, घंटे लग जाते हैं, तो उसके लिए आपकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अगर हम ट्रेडिशनल वे में जिस तरह से प्रीरेक्विजिट्स पढ़ाए जाते हैं, तो इतना आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर की बेसिक लिटरेचर का अंदाज़ा होना चाहिए। कंप्यूटर होता क्या है, लैपटॉप, इनके किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, इनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स का बेसिक नॉलेज होना। ठीक है, इतना अगर आपको नॉलेज है तो उसके बाद हम लोग चूँकि आपको OSI मॉडल से स्टार्ट करवाते हैं, जो कि आप मैट्रिक में भी स्टडी करते हैं, तो इसलिए आपको तमाम तर चीज़ का बिल्कुल स्क्रैच से अंदाज़ा हो जाएगा नेटवर्क्स का। ठीक है, तो प्रीरेक्विजिट क्या है? एक तो आप कंसिस्टेंट होना बड़ा ज़रूरी है। क्यों कि आप लोग एक बात जहन में रखिएगा, क्योंकि कुछ यहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट्स और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स और कुछ जो हैं वो 6, 7, 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। तो आप एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जहन में रखिएगा कि दीज आर नॉट ट्रेडिशनल क्लासेस। ये कोई रवायती क्लासेस नहीं है जो आप लोगों के कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में किसी एक सब्जेक्ट की तरह होती हैं, बल्कि यहाँ हर एक क्लास में आपको एक स्किल सिखाई जाएगी, और वो स्किल आप जब जॉब या इंडस्ट्री में जाएंगे तो वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। इसलिए गैप्स आर नॉट अलाउड ड्यूरिंग CCNA. So for due to by keeping all these things in mind,
वी ऑलरेडी प्लान द गैप्स फॉर यू, लाइक अगर आपको सेम डे प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता, हम आपको एक दिन देते हैं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपकी क्लास होगी, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आप ब्रेक लें, उसमें आप प्रैक्टिस करें, उसमें आप वो लैब करें, क्योंकि हर क्लास में हम थियोरेटिकली एक टॉपिक को कर रहे होंगे और साथ ही प्रैक्टिकल उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे। हमारे पास रैक इंस्टॉल डिवाइसेस होंगी, हम कुछ सिमुलेशन प्लेटफॉर्म जो आप लोगों में से कुछ यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज से भी मौजूद हैं और डिफरेंट रिमोट लोकेशन से ऑनलाइन हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, तो फॉर दोज पीपल आई विल introduce some simulation tools as well, so that you guys can do the practice for all of these by living at home and by remote places as well. But those people who will come and join physically, you guys will have extra facility that you will have a physical console cable available and the physical devices on which you can make the topology as per your requirement, and you can do the practice as well. But the people who are present in remote location, you have no need to worry about that. Just taking the access of those devices will be different from the simulation and other than the physical devices. Apart from that, all the protocols, all the configuration, all the topology, you can do the practice in simulation softwares as well. Okay, यानी कि हमें सिर्फ इन डिवाइसेस को एक्सेस करना, फिजिकल डिवाइसेस और इनकी फिजिकल कनेक्टिविटी जो है वो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से चेंज होती है। जब इनकी कनेक्टिविटी करके हम एक टोपोलॉजी बना देते हैं, उसके बाद आप सेम वही प्रोटोकॉल्स इन फिजिकल डिवाइसेस के ऊपर भी अप्लाई करते हैं और सेम प्रोटोकॉल्स आप उन वर्चुअल डिवाइसेस या फिर हम सिमुलेटेड डिवाइसेस के ऊपर भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, so for that Cisco has already provided some simulation softwares. I will let you know and I will introduce all those later on. ठीक है, अच्छा, ये मुख्तलिफ तरह के सिस्को जो है ना, मुख्तलिफ तरह के कोर्सेज ऑफर करते हैं, ये डिफरेंट सर्टिफिकेशंस होती हैं। CCNA क्लाउड के अंदर अलग से आप होता है, CCNA कोलैबोरेशन, डाटा सेंटर, इंडस्ट्रियल, राउटिंग एंड स्विचिंग, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर, वायरलेस। तो इनमें से अगर हम लोग बात करें तो CCNA हम डाटा सेंटर की भी बात कर रहे होंगे, राउटिंग एंड स्विचिंग की भी बात कर रहे होंगे, सिक्योरिटी की बात कर रहे होंगे और वायरलेस की भी बात कर रहे होंगे। हम जो है वो इन तमाम तर जो है ना टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे होंगे आपके साथ। हालांकि जब ऑफिशियल सर्टिफिकेशन की तरफ आप लोग जाएंगे तो इस कोर्स के बाद मेनली आप जो जिसके अहल होंगे जिस सर्टिफिकेशन के, वो ये सर्टिफिकेशन होगी CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग। योर मेजर टॉपिक एंड फॉर योर इनरोलमेंट you have been enrolled in this specified course. All of the topics of this course will be completed, and apart from that many of the topics from the security side will also be completed in parallel as well, okay, which we are already completing, and the students, you have the proof of that with our by getting our previous lecture access. You can get check the cross check that as well. So अगर हम मज़ीद फर्दर मूव करें, ये इन जब डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर रहे होंगे, इन डिवाइसेस के ऊपर जब हम स्टडी कर रहे होंगे तो इनके ऊपर मुख्तलिफ तरह के हम प्रोटोकॉल स्टडी करेंगे, जिसमें अगर हम CCNA स्विचिंग एंड राउटिंग की बात करें तो CCNA स्विचिंग एंड राउटिंग को दो पार्ट्स में भी हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, लैन और वैन के लिए। ठीक है, लैन के अंदर हम बात करेंगे आपका जो गेटवे पेरीमीटर डिवाइस, जहां से आपकी ISP की कनेक्टिविटी होती है, उससे आगे इंटरनल किसी इंडस्ट्री के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने अगर सट्टा बिछाना है जहां पर आप गेटवे के लिए कोर स्विच लगा सकते हैं, गेटवे के बाद उसको आप उसकी जगह फायरवॉल भी लगा सकते हैं। फायरवॉल को सिक्योर, राउटर को सिक्योर बनाएं तो फायरवॉल बन जाती है। ठीक है, आप राउटर के वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, उसके ऊपर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स अप्लाई कर रहे होंगे। उसके बाद फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विचेस होंगे, एक्सेस लेयर के स्विचेस होंगे, उनके ऊपर मल्टीपल VLANs चल रहे होंगे, वर्चुअल एक मैन लोकल एरिया नेटवर्क लैन को डिफरेंट वर्चुअल लैंड्स में कन्वर्ट करके उनके ऊपर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट तरह की सेगमेंटेशंस क्रिएट कर रहे होंगे, डिफरेंट पॉलिसीज अप्लाई कर रहे होंगे। फिर जब हम राउटिंग की तरफ शिफ्ट होंगे
तो फिर आप अपने गेटवे को ISP से कनेक्ट करना. फॉर दैट यू विल बी डिस्कसिंग पोर्ट फॉरवर्डिंग, यू विल बी डिस्कसिंग नेट, यू विल बी डिस्कसिंग पैट. ठीक है. उसके बाद फिर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर करना. फॉर दैट वी विल बी डिस्कसिंग ACLs, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, स्टैंडर्ड ACLs और एक्सटेंडेड ACLs. लाइक जैसे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं यूनिवर्सिटी के, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं. उनकी यूनिवर्सिटी में टिकटॉक नहीं चलता जी, उनकी यूनिवर्सिटी में इंस्टाग्राम नहीं चलता, फेसबुक नहीं चलता जब वो यूनिवर्सिटी QAU के वाईफाई के साथ कनेक्टेड होते हैं. उसके लिए उन्होंने ACL फायरवॉल के ऊपर पॉलिसीज अप्लाई की हुई है कि जब भी कोई लैन का यूज़र इन डेस्टिनेशन सर्वर्स को एक्सेस करना चाहे जिनमें उन डेस्टिनेशन सर्वर्स का DNS एड्रेस या फिर IP एड्रेस वहाँ पे मेंशन्ड होगा, तो इनके एक्सेस ब्लॉक कर दी जाए. ठीक है. सो फॉर दैट यू गाइस कुडंट डू एक्सेस. ठीक है. इस तरह से आप लोगों की एक्सेस ब्लॉक की गई हुई है. तो अब ये एक्सेस कैसे ब्लॉक होती है, अब ये आप लोग सीखेंगे. इससे पहले आप किसी बंदे ने आउटसोर्स किया, यूनिवर्सिटी ने, हम लोगों ने, या हम जैसे किसी और बंदे ने जाके वो डिप्लॉय किया, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस course you guys will be able to apply these ACL policies for incoming and outgoing traffic into your network, how to basically monitor, how to check and balance are your incoming and outgoing traffic. ठीक है. यूजर्स मैनेजमेंट. फिर उसके बाद जब लैन वैन के दरमियान में हम लोगों ने पेरीमीटर डिवाइस लाइक गेटवे वाली डिवाइस, इसके ऊपर जब हम लोगों ने काम कर दिया, फिर हम लोग मूव करेंगे आगे राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो कि लैन पे भी चलते हैं. डिफरेंट हम लोग राउटर्स, कोर लेयर्स के दरमियान में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन और कोर लेयर के दरमियान में भी हम राउटिंग प्रोटोकॉल चला सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा मेनली एक ISP के अंदर डिफरेंट एटोनोमस सिस्टम्स जो होते हैं, उन एटोनोमस सिस्टम्स के अंदर फिर हम कोई इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स और एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि डिफरेंट ISPs के इंटरनल चलते हैं और उसके बाद मल्टीपल ISPs को आपस में कनेक्ट करवाते हुए डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स तक जाकर आपके पैकेट को पहुंचाते हैं. क्योंकि मैंने बात की थी कि रावलपिंडी, चांदनी चौक, सिस्कॉम में बैठे आप यूज़र्स एक पैकेट भेज रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में किसी एक डेस्टिनेशन के ऊपर, तो आप किस तरह से वो पूरा एक वर्क फ्लो, पूरा एक मैकेनिज्म, किस तरह से ये कम्युनिकेशन हो रही होगी, वो दरमियान में किस किस तरह के सिक्योरिटी अटैक्स आ सकते हैं, उनको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है. ठीक है. इन तमाम तर चीज़ों के बारे में आप लोग स्टडी करेंगे. ठीक है. तो सो फॉर दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस आउटलाइन, आई विल मेंशन समवन एल्स. इसको जनरली मैंने इन तमाम तर चीज़ों को वर्बली बता तो दिया आपको, लेकिन मैंने जो न्यू अपडेटेड आउटलाइन बनाई हुई है मैं डिस्कशन इसकी उसके हिसाब से करूँगा. लेकिन उसकी तरफ मूव करने से पहले मज़ीद मैं आपको कुछ सिमुलेटर्स का ओवरव्यू देता हुआ चलूँ. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि आप लोग ये तमाम तर काम प्रैक्टिकली कर रहे होंगे. ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे आप जब जॉब, बैंक्स, यूनिवर्सिटीज़, हर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट का एक मैंडेटरी पार्ट जो है वो नेटवर्क्स है. ठीक है. IT इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पता है आजकल हर एक बंदा अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन करना चाह रहा है. ठीक है. ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी सर्विसेज पहुंचे, और ड्रॉप शिपिंग वगैरह और ये चीज़ें आप लोग ऑनलाइन सेल कर रहे हैं. हर एक चीज़ को लोग चूज़े भी घर पे पाल के उनको ऑनलाइन ऐड के ज़रिए जो है ना बेच रहे होते हैं. तो अब यहाँ तक जब बात चली गई, और जो वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉट जस्ट फॉर द IT बैकग्राउंड, बल्कि कोई भी सर्विस है, ठीक है, कुछ भी बेच रहे हैं वो, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं. तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए उनकी ऑनलाइन सर्विसेज कहीं ना कहीं किसी सर्वर पे वो होस्ट कर रहे होते हैं. या फिर बैंक से एग्जांपल ले लें आप, पहले, इससे पहले वहाँ फिजिकल सिस्टम होता था, जाते थे, चेक बुक होती थी, उसको साइन करके वहाँ से पैसे वगैरह आप विथड्रॉ करवाते थे. अब आपके पास एप्लीकेशन है, डिजिटल ऐप्स हैं, आप एक सेकंडों में कहीं से कहीं ट्रांसफ़र कर देते हैं. ठीक है. तमाम तर चीज़ें ऑनलाइन हुई हुई हैं. तो ये बैंक्स, ये किस तरह से अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन किया हुआ है. तो ये इस ऑनलाइन करने के लिए और इन तमाम सारे सर्विसेज के लिए अगर कोई भी IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो दो तरह की रिक्वायरमेंट्स को लेकर चल रहा होता है. एक उनकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस IT इंफ्रास्ट्रक्चर की, उस ऑर्गेनाइजेशन के IT इंफ्रास्ट्रक्चर की. एक तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी, दूसरी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी.
फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले उनके सर्वर्स, उन सर्वर्स के ऊपर वो सर्विसेज जो कि वो चला रहे हैं, कोई एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट होगी जिसके ऊपर वो एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे होंगे अपनी सर्विसेज की, ठीक है, कोई एप्स होंगी। उसके बाद कोई एक प्लेटफॉर्म होगा, कोई एक आर्किटेक्चर होगा उनके दरमियान में, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो जो सर्वर्स होंगे, वो सर्वर्स क्या सर्वर एक डिवाइस है वो भी, ठीक है। आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर को भी सर्वर बना सकते हैं और फिजिकल सर्वर्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है, स्पेसिफाइड डेडिकेटेड सर्वर्स। आप उन सर्वर के अंदर वो सर्विसेज को होस्ट कर लेंगे, क्लाउड बेस्ड सर्वर भी हो सकता है। उसको फिर आप ऑनलाइन करने के लिए और उसके अवेलेबिलिटी के लिए आप फिर नेटवर्किंग को साथ ऐड करेंगे। नेटवर्किंग में फिर वो सर्वर खुद भी नेटवर्किंग का पार्ट है, उसके साथ साथ फायरवॉल्स, स्विचेस, क्योंकि उस सर्वर के ऊपर जो आपने सर्विसेज रखी हुई हैं उनके ऊपर कोई अटैक भी तो आ सकता है, फिशिंग अटैक कर सकता है, डीडोज अटैक कर सकता है, डोज अटैक कर सकता है, ठीक है। इस तरह से मुख्तलिफ तरह के अटैक से बचाने के लिए उस सर्वर के साथ आप फायरवॉल को कनेक्ट करेंगे या फिर राउटर को कनेक्ट करके इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक के ऊपर कोई पॉलिसीज लगा देंगे, ठीक है। फिर स्विचेस होंगे, फिर एंड डिवाइसेस होंगी जिनके जरिए उनको मैनेज किया गया होगा। तो ये तमाम तर चीज़ें जब तक नहीं होंगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती, लाइव ही नहीं हो सकती, वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्टिसिपेशन नहीं बन सकती या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं बन सकती। इसके लिए ये बेसिकली जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का डाटा सेंटर के अंदर ये स्विचेस, राउटर्स के नेटवर्किंग के पार्ट और उसके साथ उनके सर्वर्स होंगे। उसके बाद फिर उनकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी। दैट रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली वेरी डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशंस बजट एंड देयर बिजनेस लेवल, ठीक है। तो ये हर एक जगह पे वेरी करती हैं। उनमें फिर परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी और सिक्योरिटी, ये तीन चीज़ें जो है ना नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आपने मेनली फोकस जो करना है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नेटवर्क्स जिसके ऊपर आप काम करने जा रहे हैं, जो मैं जहाँ से मेरी बात ओरिजिनेट हुई है कि ये जिन डिवाइसेस के ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आता है। इसके बगैर कोई ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती। इट्स मीन दैट इन इवन इफ द टुडेज इरा जहाँ पे हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, वेब, चैट जीपीटी, एआई, इन चीज़ों के आने से जॉब्स जो है वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, वहाँ की जॉब मार्केट बहुत डाउन हो गई है, क्योंकि जहाँ पर पहले 10 डेवलपर्स की ज़रूरत थी वहाँ पे 2 डेवलपर्स जो है वो काम पूरा कर रहे हैं चैट बोर्ड्स को यूज़ करते हुए। इसलिए लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिर भी बंदा ज़रूरत है, उनकी ये डिवाइसेस, इनकी ऑटोमेशन जो है ना, उसके लिए भी SDN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग है, बट it will be used and it will be deployed after at least next 5 to 7 or 8 years. It will be the part of over this industry. But if you talk about in Europe, in US, they are very fastly deploying this architecture as software defined networking, where they are also shifting their networks to the cloud as well, where they have a remote controller from which they are managing all of the internal data. तो लेकिन उस तरफ जाने के लिए आपको आने वाले 5-7 साल में इसका मतलब नेटवर्क्स भी बहुत तेज़ी से जंप करेगा, तो उसके लिए आप पहले ट्रेडिशनल नेटवर्क्स का अंदाज़ा होगा तब उस ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे, उस सिक्योरिटी को आप अप्लाई कर पाएंगे, उस इंडस्ट्री का आप पार्टिसिपेट बन सकेंगे। तो इट्स मीन दैट उसके लिए आप वही बात जैसे रिसर्च से मैंने स्टार्ट की थी कि पहले जो हो रहा है उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब इन तमाम तर चीज़ों, ये जो डिवाइसेस इनकी बात की, इनसे इंट्रोडक्शन करना, इनको एक्सेस करना, इनके ऊपर काम करना सीखना, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, वेरी सिंपल, ठीक है। आप बड़े इजीली इन तमाम तर चीज़ों, इन सर्वर्स के ऊपर, राउटर, स्विचेस के ऊपर काम करना सीखेंगे, टोपोलॉजी बनाना सीखेंगे, डिवाइसेस को अरेंज करके उनके ऊपर कॉन्फ़िगर करना, उनके ऊपर प्रोटोकॉल चलाना आप बड़े इजीली सीख लेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करवाऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए जो यहाँ पे जो लोग फिज़िकल बैठे हुए हैं उनके लिए तो बड़ा इजी है, फिज़िकल डिवाइसेस भी मौजूद हैं, लेकिन आप जब घर चले जाएंगे या जो रिमोट लोकेशंस में आपके पास फिज़िकल डिवाइसेस नहीं होती, तो आप लोगों के लिए, और ये डिवाइस हर कोई परचेज़ भी नहीं कर सकता, 2-2, 3-3 लाख की एक डिवाइस है ये, ठीक है। तो आप जैसे लोगों के लिए फिर सिस्को पैकेट ने ही एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, सिस्को ने एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, सिमुलेटर है ये, सिस्को पैकेट ट्रेसर, ठीक है। इसके अंदर वो तमाम तर डिवाइसेस मौजूद होती हैं जो कि आप को इंडस्ट्री के अंदर हेल्पफुल होती हैं, इंडस्ट्री के अंदर आपको यूज़ करनी पड़ती हैं, जाके आपके रैक का पार्ट होती हैं।
लेयर 2 डिवाइसेस, लेयर 3 डिवाइसेस, ठीक है, और लेयर 4, लेयर 5 जो भी प्रोटोकॉल्स आप उनके ऊपर चलाना चाहें वो तमाम तर प्रोटोकॉल चला सकते हैं। इसके लिए इनिशियली while starting from the scratch you guys have the Cisco packet tracer installed in your laptop. तो स्टार्टिंग में हम Cisco packet tracer से स्टार्ट लेंगे, but there are some limitations of the Cisco packet tracer. Some extended protocols it doesn't support. तो उसके लिए फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे, ये एक और सिमुलेटर है GNS, ठीक है, GNS 3। हम फिर इसके साथ साथ इन पैरेलल GNS को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। ये कदरे बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है, और रियल टाइम हम लोग ट्रैफिक मॉनिटरिंग भी हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। किसी तरह से कोई अटैक्स वगैरह हो रहे हों या आपकी इंफॉर्मेशन कंप्रोमाइज़ हो रही हो सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से, लाइक वायर शार्क या पैकेट कैप्चरिंग, डिफरेंट टूल्स को हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो उसके लिए आप ये GNS को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद फिर आप साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट के लिए लिनक्स, काली लिनक्स को ऐड करके उसके ज़रिए अटैक्स करना, SQL इंजेक्शन वगैरह, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, और फिर उसके साथ साथ जब आप CCNA के ऑलमोस्ट एंडिंग सेशंस के अंदर आप फिर डिफरेंट वेंडर्स को अगर एक्सप्लोर करना चाहें, लाइक अपार्ट फ्रॉम सिस्को अगर आप हुआवे, फोर्टिनेट, पालो आल्टो, टेंडा, इन डिफरेंट वेंडर्स को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें, इनकी सिमुलेशन करना चाहें, उनकी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें, तो आप फिर ये EVE-NG UNL इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर फिर आपके पास मल्टी वेंडर सपोर्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे आप डिफरेंट वेंडर्स की डिवाइसेस को कनेक्ट करके उनकी लैब्स बना सकते हैं। अब बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर, मैं जब भी कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर द डिप्लॉयमेंट जाता हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि उसमें जो इम्पोर्टेंट डिवाइसेस हैं और इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं उनको पहले टेस्ट कर लिया जाए। उनको टेस्ट करने के लिए या मैं देखता हूँ फिर पैकेट ट्रेसर के ऊपर अगर हो सकता है तो आई चूज़ दिस वन, और अदरवाइज़ मैं EVE-NG UNL के अंदर उस टोपोलॉजी को पहले बना के उसके ऊपर ये कोई भी प्रोटोकॉल चलाना हो, कोई भी आप लैब की प्रैक्टिस करनी हो, तो मैं वहाँ पे पहले कर देता हूँ। उसका बेनिफिट ये होता है कि रियल इन्वायरमेंट के अंदर फिर ट्रबल शूटिंग मुझे कम से कम फेस करनी पड़ती है। जो टेस्टिंग होती है, जो एरर्स होते हैं वो पहले से मैंने रिजॉल्व किए होते हैं। तो मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इसी चीज़ को ही प्रेफर करते हैं। इसी तरह से वो पहले टोपोलॉजी बनाते हैं और उसके अंदर पहले पेपर वर्क करते हैं, फिर उसको रियल इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करते हैं। लाइक एक क्लास से आर्किटेक्चर पहले डिज़ाइन करना, उसकी प्रैक्टिस करना, फिर उसको डिप्लॉय करना। इट इज़ वेरी गुड प्रैक्टिस एक्चुअली इन द नेटवर्क्स, ठीक है। फिर उसके बाद लाइक यहाँ पे हमारे साथ खुशबख्त हैं या फिर एक दो जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के अंदर रिसर्च कर रही हैं। तो फॉर यू गाइज will be exploring all of these tools which I have mentioned above, and apart from that the specialized tool which you guys will be exploring is Mininet, okay. For that you guys will be, and even you physical guys as well, in this course I will also let you know, and I will also give you a deep into software defined networking, where what is the architecture of software defined networking. आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, आपने नाम सुना है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप जैसे लोगों के लिए जो कंटिन्यूस लर्निंग वगैरह इस फेज में आते हैं। मैं आपको इसमें भी एक्सप्लोर करवाऊंगा, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आपके ये ISPs वगैरह यहाँ पे सब ये ट्रेडिशनल राउटर स्विचेस रिमूव होने वाले हैं, उनकी जगह कंट्रोलर्स लगेंगे, मिराकी डिवाइसेस लगेंगी, ठीक है। तो वो उनकी उसमें क्या होगा, जहाँ पे आप ये जैसे लास्ट क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे, हर एक डिवाइस के ऊपर अलग अलग प्रोटोकॉल चलाते हैं, उसके बजाय एक कंट्रोलर लगेगा, उसके अंदर सारा कंट्रोल प्लान होगा, उसके अंदर तमाम तर डिवाइसेस की जो है ना हैंडलिंग होगी, और एंड डिवाइसेस सारी जस्ट डाटा प्लान के अंदर काम कर रही होंगी। इनका काम सिर्फ फॉरवर्डिंग होगा। राउटर, स्विचेस, फायरवॉल्स, ये तमाम तर डिवाइसेस जस्ट स्विचेस की तरह काम करना स्टार्ट कर देंगे। इनके पास अपना कोई कंट्रोल प्लान नहीं होगा, इनके ऊपर सारा कुछ हम ऊपर से APIs प्रोग्रामिंग पाइथन की स्क्रिप्टिंग के जरिए हम कंट्रोलर को कंट्रोल करके उसके जरिए हम इसको, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं तो उसमें इफ एल्स की स्टेटमेंट्स और द थिंग्स लाइक दैट, इस तरह से हम इनको बेसिकली हैंडल कर रहे होंगे। तो आपको इस कोर्स के अंदर SDN भी मैं अच्छे से एक्सप्लोर करवाऊंगा। तो ये बेसिकली नेटवर्क ऑटोमेशन, लाइक जैसे इससे पहले आपके सर्वर्स, आप वेबसाइट्स वगैरह लोग बनाते थे, उनको डिफरेंट फिजिकल सर्वर्स के ऊपर होस्ट करवाते थे, लेकिन फिर एक क्लाउड आ गया, एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन आ गई जहाँ से तमाम तर
लोग स्पेस परचेज करते हैं, वहाँ से अपनी साइट्स को ऑनलाइन कर देते हैं। बड़ा अच्छा ब्रेक थ्रू था। लेकिन रिसर्चर्स ने सोचा जैसे साइट्स वेबसाइट्स को ऑनलाइन और एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन देने के लिए क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर आया, तो क्यों ना नेटवर्क्स क्यों फिर ट्रेडिशनल वे में चल रहे हैं, क्यों हर एक डिवाइस के ऊपर आप रिलायबल हैं, हर एक डिवाइस के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं कि हर एक कोई डिवाइस फेल हो जाती है पूरे नेटवर्क को हार्म कर रही है, क्यों ना इन डिवाइसेस के ऊपर भी हम फिर सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल किया जाए। फिर उसके लिए फिर इस सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग को बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया गया। हम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स यूएस यूके में 90 तो नहीं कह सकते, 40 to 45% सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग एसडीएन इनेबल्ड डिवाइसेस डिप्लॉयड हो चुकी हैं। ठीक है, और ये एसडीएन में अगर सिस्को की बात करें, बाकी 40 नेटवर्क हाउस में एसडी वैन और इस तरह से मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेज हैं। लेकिन अगर हम सिस्को की बात करें तो एक मिराकी बेसिकली एक अलग सी कंपनी थी जिसने मिराकी की डिवाइसेस बनाई थी जो क्लाउड बेस्ड डिवाइसेस थी, इस तरह से कंट्रोलर के तौर पर काम करती थी। तो सिस्को ने उनको क्या कर दिया, परचेज कर दिया। वो उस पूरी कंपनी को इवन के दोबारा से पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम और चीज़ें लॉन्च करने के बजाय एक बनी हुई कंपनी थी उस कंपनी को परचेज कर दिया। तो अब वो डिवाइस सिस्को मिराकी कहलाती है। ये डिवाइस आपके सिस्को पैकेट ट्रेसर में भी अवेलेबल है और इस डिवाइस को भी मैं आपको एक्सप्लोर करना सिखाऊंगा। लेकिन फॉर द रिसर्च पर्पस इसके लिए फिर आपको स्पेसिफिकेशंस बहुत हाई चाहिए होती हैं। इसके एक एक कंट्रोलर जो होता है एसडीएन का वो तकरीबन 24 to 25 GB रैम सिर्फ लेता है लोड होने के लिए। फिर उसके ऊपर जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करते जाते हैं तो इट टेक्स वेरी ह्यूज स्पेस ऑफ योर रैम। सो फॉर दैट हम उसको वर्चुअलाइज्ड वे में करने के लिए हम मिनी नेट को यूज़ करते हैं। दिस इज़ फॉर द रिसर्च। आजकल जो रिसर्चर्स एसडीएन को स्टडी करके इसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि अब चूँकि एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई टेक्नोलॉजी के ऊपर सब रिसर्चर्स अपनी इनोवेशन, अपनी रिसर्च को ऐड कर रहे हैं, अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं ताकि इसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। तो उसके लिए फिर जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो मिनी नेट है और ये टोटल लिनक्स बेस्ड है और इसके बैक एंड पे पाइथन के जरिए हम स्क्रिप्टिंग करते हैं। दिस इज़ नॉट डिफिकल्ट एक्चुअली, बट आपको इसका आइडिया, इसका अंदाज़ा होना ज़रूरी है। तो हम लोग इस में मिनी नेट लिनक्स को भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कोर्स एंड उसके साथ साथ जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हम एक्सप्लोर करेंगे और फिर उसके साथ साथ जिन जिन सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स को हम लोग एक्सेस कर रहे होंगे। चलें जी, अब यहाँ तक हो गया। अब हम इससे आगे नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे कि स्पेसिफिकली इस कोर्स के अंदर बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ डिफरेंट people as well, I will be basically exploring all of these topics in front of you guys। ठीक है, मैंने बहुत सी सिंप्लीफाइड वे में लिखा हुआ है, इसमें हर एक टॉपिक की बहुत ज़्यादा डिटेल्स होंगी। तो अब चलेंगे कैसे हम लोग, मैं आपको पूरा एक रोड मैप अगर बताऊं। अच्छा, ऑनलाइन वाले लोग आई थिंक ये कुछ देर के बाद कॉल एंड हो जाएगी, इसका ये भी लिमिटेशंस हैं कि स्पेसिफिक टाइम तक होती है, शायद 1 घंटा इसकी एक्सेसिबिलिटी होती है। उसमें फिर मैं आई थिंक ये इसी लिंक से आप या दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं या फिर उन तमाम तर ग्रुप्स के अंदर मैं ये वाला नया लिंक बना के शेयर कर दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट 10 to 15 minutes आर वेरी क्रूशियल वेयर यू विल बी basically we will be discussing what we are going to cover in over next 4 to 5 months or 4 months at least। okay, चलें जी, उसके लिए ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग ये वाला क्लासेस आप लोग करवा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो अभी ये वाला जो कोर्स है हम लोग वो इस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। सिस्कॉम एक बड़ा मशहूर इदारा है, आप सब लोग इसको जानते होंगे। इट्स बेसिकली एन इंटरप्राइज हैविंग 4 to 5 different businesses and it is working for the deployment of different organization from last 20 to 25 years। सिस्कॉम TNA इसका नाम है। में ये बेसिकली एग्जिस्ट करता है फिजिकल, जहाँ पे हमारी फिजिकल क्लासेस होती हैं। 2nd फ्लोर नियर खुशहाली बैंक। आप इसे जो लोग फिजिकली आना चाहें, वेलकम फॉर दैट एज वेल। यू विल बी एक्सप्लोरिंग ऑल दीज डिवाइसेस फिजिकली एंड फेस टू फेस इज एक्चुअली मोर बेटर देन रिमोट, राइट।
दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सिस्कॉम के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान की बड़ी नंबर यूनिवर्सिटीज़ के डेटा सेंटर्स, मिनिस्ट्रीज़ के, नेशनल असम्बलीज़ के, बैंक्स के, और उसके साथ साथ CST, इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप सिस्कॉम की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं कि फ्राम द पास्ट 20 ईयर्स डिफरेंट तरह के हम लोग डाटा सेंटर्स डिप्लॉयड कर चुके हैं। और इसके अलावा हम ऑन साइट ट्रेनिंग्स 1-to-1 सेशंस भी प्रोवाइड करते हैं। और उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस, पाकिस्तान आर्मी के जो नेटवर्क्स के लोग डिपार्टमेंट, उनके लिए हम प्रॉपर सेशंस प्रोवाइड करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेज में रिसेंटली मैंने CCNP के 6 मंथ्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। PCSIR, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उनके डिपार्टमेंट के जितने नेटवर्क्स के लोग थे उनको हम लोगों ने CCNP और इसके अलावा उनका डाटा सेंटर हम लोगों ने डिप्लॉय किया। फिर लाहौर में फिंका बैंक, उसकी तमाम तर 140 ब्रांचेज़ हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, वो हम लोगों ने तमाम तर ब्रांचेज़ डिप्लॉयड की। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट भी हमारे साथ कर सकते हैं। करंटली हमारा जो प्रोजेक्ट, एक छोटे प्रोजेक्ट्स तो चलते रहते हैं, लेकिन जो बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है वो रिफा यूनिवर्सिटी, उसका कैंपस गुजरांवाला कैंपस, उसके अंदर हम लोग उसका जो डाटा सेंटर बना रहे हैं, जहाँ पर 150+ एक्सेस पॉइंट्स और उसके साथ साथ राउंड अबाउट 10 to 15,000 यूज़र्स को हम लोग मैनेज करेंगे वहाँ पर। ठीक है, दैट इज़ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच एज वेल। राइट नाउ देयर just the racks are being deploying, some cable work is going on. After that configuration and programming of those devices. So इस तरह से भी आप लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब आप हमारा हिस्सा बन जाएंगे। तो ये सारा कुछ करने के लिए आपको पहले अपना नॉलेज अच्छा होना चाहिए नेटवर्क्स और सिक्योरिटी का और इन डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन का। फॉर दैट हम कैसे स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले नेक्स्ट क्लास जैसे हमारी स्टार्ट होगी तो एक नेटवर्किंग का बेसिक ओवरव्यू देंगे और इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से बताएंगे। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आप सब लोग एक्सप्लोर कर चुके हैं ऑलरेडी, आज की क्लास में भी हमने कुछ बातें की। लैंड मैन में इतना आप लोगों को अंदाज़ा है भी, और भी हम इसको एक्सप्लोर करेंगे जो चीज़ें मेंशन की हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ OSI मॉडल, आप लोगों ने पढ़ा तो होगा ही, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आप लोग देखेंगे कि एक डिफरेंट वे में हम लोग OSI मॉडल आपको पढ़ाएंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क एंड द सिक्योरिटी। तो OSI मॉडल को हम डिटेल में सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं, डिवाइसेस को यूज़ कर रहे होते हैं, हम इनडायरेक्टली इस OSI मॉडल के ऊपर ही काम कर रहे होंगे। तमाम नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी जो है वो इस OSI मॉडल के अंदर ही है, OSI मॉडल से बाहर कुछ नहीं है। सारा इसके किसी ना किसी लेयर के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, लेयर 1 to लेयर 7। जब भी आप नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आप बेसिकली OSI मॉडल की किसी ना किसी लेयर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इसलिए इफ़ यू टॉक अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, सो स्टार्ट फ्रॉम OSI मॉडल। अगर आप OSI मॉडल का आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा तो आपको हर एक, चूँकि आप जब काम कर रहे होंगे आपको पता होगा कि मैं किस लेयर के ऊपर काम कर रहा हूँ, और जब आप कोई पैकेट के ऊपर एड्रेस दे रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कौन सी लेयर का हेडर ऐड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद हम फिर OSI मॉडल के अंदर ही आपको इन तमाम तर नेटवर्क डिवाइसेस का अंदाज़ा भी हो जाएगा, लाइक राउटर कौन सी लेयर पे काम करता है, स्विच, हब्स, एक्सेस पॉइंट्स, इन डिवाइसेस के बारे में आपको तारुफ करवाया जाएगा। स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से करेंगे। फिर उसके बाद पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन को यूनिक बनाने के लिए, चलिए मीटिंग एंड हो गई है।
2 मिनट वेट कर लेते हैं, फ्रेंड्स ज्वाइन कर लें दोबारा से। चलें जी, मीट में से कोई एक बंदा मुझे कांटे कंफर्म कर दे कि आवाज़ आ रही है ठीक। जी, तो हम लोग बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट्स के हवाले से कि किस तरह से हमारा रोड मैप होगा नेटवर्क्स को सीखने के लिए। तो आफ्टर एक्सप्लोरिंग द OSI मॉडल विल मूव टुवर्ड्स द IP एड्रेस। IP इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सभी लोगों ने नाम सुना होगा IP एड्रेसिंग का, लेकिन IP उसकी क्लासेस, सबनेट्स, हर एक चीज़ को हम लोग डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। फिर उसके अलावा DHCP सर्वर, FLSM, VLSM, स्टैटिक IP एड्रेसिंग, डायनेमिक IP एड्रेसिंग। तो ये किसी भी इंफॉर्मेशन, कोई भी पैकेट, कोई भी जो कंप्रोमाइज़ होता है होस्ट, तो वो ज़्यादातर IP बेस्ड के ऊपर अटैक्स किए जाते हैं। तो इस वजह से IP एड्रेसिंग का बड़ा डिटेल में नॉलेज होना चाहिए, या फिर जो राउटिंग टेबल्स या फिर लैन के अंदर जो भी कम्युनिकेशन हम कर रहे होते हैं वो IP की बेस के ऊपर कर रहे होते हैं, लेयर 3 के ऊपर ये काम करती है। तो इसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। फिर इसके अलावा इथरनेट लेयर और इथरनेट स्विचिंग के हवाले से बात करेंगे, जहाँ पे हम लोग स्विचिंग के कंसेप्ट जिनमें वर्चुअल लैन्स, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स,
ठीक है, मैक एड्रेस की सिक्योरिटी, एडवांस स्विचिंग टेक्नोलॉजीज, इंटर वीलैन राउटिंग, ईथर चैनल्स, पोर्ट सिक्योरिटी, लैन सिक्योरिटी, ठीक है, रूट गार्ड, बीपीडीयू गार्ड, ठीक है, इन तमाम तरह प्रोटोकॉल्स को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे होंगे इथरनेट एंड स्विचिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर। उसके बाद ये बेसिकली ये वाला तमाम तर काम आप स्विचिंग के में करेंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा जब आप राउटिंग कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग राउटिंग की बेसिक्स, फिर राउटिंग टेबल क्या होता है, फिर स्टैटिक राउट्स, डायनेमिक राउट्स, ठीक है, फिर डायनेमिक राउट्स में रिप, उसके मल्टीपल वेरिएंट्स, ठीक है, EIGRP, OSPF, ठीक है। उसके बाद किसी हद तक BGP का इंट्रोडक्शन, नेट, ACL, ठीक है, ये तमाम तर टॉपिक्स आप राउटिंग में करेंगे। फिर नेटवर्क सिक्योरिटी में भी ACLs के हवाले से OSPF ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, सिक्योरिटी पॉलिसीज, पोर्ट सिक्योरिटी, DHCP स्पूफिंग, DHCP स्नूपिंग, ये वाले टॉपिक्स आप नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर कर रहे होंगे, ठीक है। ट्रबल शूटिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर फिर OSI मॉडल की डिफरेंट लेयर्स की आप ट्रबल शूटिंग कर रहे होंगे, लॉगिंग, मॉनिटरिंग, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल, पिंग, ट्रेस राउट्स, इन तमाम तर चीज़ों की मदद से आप नेटवर्क के अंदर ट्रबल शूटिंग को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है जी। फिर यहाँ पे बेसिकली बात आती है नेटवर्क ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी, जहाँ पे आपकी बात आती है APIs की, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। ये इस पॉइंट के ऊपर आप लोग आके फिर SDN को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, मिनी नेट को आप लोग एक्सप्लोर कर रहे होंगे। उसके अलावा मशीन लर्निंग के सेमिनार्स आप लोग, सेमिनार टाइप आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है, जहाँ पे आपको जब आप नेटवर्क्स को मशीन लर्निंग के साथ किस तरह से जोड़ा जाए और मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को कैसे एक्सप्लोर किया जाए नेटवर्किंग के अंदर, नेटवर्क की ऑटोमेशन के ऊपर, ये जो कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, सिस्को मिराकी, या फिर APIs, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, किस तरह से आपने इन कंट्रोलर बेस्ड डिवाइसेस के ऊपर अप्लाई करके एंड डिवाइसेस को आपने प्रोग्राम करना है। तो वो टॉपिक्स आप ये इस पूरे एरिया के अंदर आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे। फिर उसके बाद लिनक्स एज अ साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म आप कैसे काम करेंगे नेटवर्क। मैं आपको एक ये नहीं कह रहा एक्सपर्ट लेवल के ऊपर लेके जाऊंगा, लेकिन फॉर द एंट्री पॉइंट कि आप नेटवर्क के अंदर आपको लिनक्स यूज़ करनी पड़ जाए, लिनक्स की इंस्टॉलेशन आपके सिस्टम के अंदर, इसको वर्चुअलाइजेशन किस तरह से आपने करनी है। फिर उसके अलावा नेटवर्क्स के लिए लिनक्स की जो बेसिक कमांड्स हैं वो सारी मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करवाऊंगा, क्योंकि दिस has become very important and the drawback of our previous lecture as well। तो हर एक चीज़ से सीखना चाहिए। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बाहर गए उनको वहाँ पे लिनक्स का आइडिया नहीं था। Either it is not the part of CCNA or the fee they will get from you, it is not including, इसके अलग से पूरे कोर्सेज हैं, रेड हैट के हम लोग कोर्सेज करवाते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ताकि आप करंट जो इंडस्ट्री है उसको आप compete कर सकें। सो फॉर दैट एक्चुअली मैंने ये आउट ऑफ द वे जाके आपके एक ही कोर्स आउटलाइंस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा जो है ना टॉपिक्स भी ऐड किए, एंड फॉर आल्सो द बेटरमेंट ऑफ सम ऑफ माय स्टूडेंट्स टू होम आई एम सुपरवाइजिंग। सो उन लोगों के लिए भी ये ताकि हेल्पफुल साबित हो सके। तो ये तमाम तरह चीज़ें जहन में रखते हुए मैंने ये वाले टॉपिक्स ऐड किए। फिर उसके बाद फिर लिनक्स और लिनक्स के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, यूबंटू, ठीक है, सेंटोस, कॉली लिनक्स, ठीक है, तो हम यूबंटू को भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे। फिर कॉली लिनक्स के अंदर भी हम लोग उसको इंस्टॉल करना, उसके अंदर काम करना, अटैकर मशीन, मेटास्प्लोइटेबल मशीन बना के उसके एक विक्टिम मशीन बना के उसके ऊपर बेसिक अटैक्स करना आपको सिखाएंगे, ठीक है। और फिर उस ताकि आप फ्यूचर में जो CEH की तरफ जाना चाहते हैं, सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स, आपको उसका भी एक रोड मैप मिल जाएगी किस तरह से आपको उसके अंदर काम किया जाएगा। और सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का भी आपको एक प्रॉपर मैं एक वेबिनार इसी तरह से या फिर सेमिनार प्रोवाइड करूँगा, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स अटैकर्स को मैं इनवाइट करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद कॉली लिनक्स फॉर द पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर कॉली लिनक्स का क्या रोल है? पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज़ वन ऑफ द
एंड इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल ऑफ योर साइबर सिक्योरिटी। इसको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे होंगे, जहाँ पे हम मेटास्प्लोइटेबल नेटवर्क मैप, वायर शार्क, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, ठीक है, पैकेट एनालिसिस, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से बात कर रहे होंगे। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स, ठीक है। फिर इन दोनों चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है डाटा गैदरिंग, जिसके ऊपर आप ये काम करते हैं। साइबर सिक्योरिटी या CEH का जो है, जब हम उसकी बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डाटा गैदरिंग टेक्निक्स के। लेट्स सपोज कोई किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या किसी एक एंड डिवाइस को आप अटैक करना चाहते हैं, तो उसकी आपने सबसे पहले उसकी जैसे आप किसी बंदे के ऊपर भी कोई बंदा अटैक करता है, या पुराने ज़माने में जिस तरह से जंगें होती थी, मुख्तलिफ कबाइल आपस में लड़ते थे, तो वो पहले एक दूसरे का पहरा अपने बंदे वहाँ पे भेज के देखते थे, इनका चाल चलन क्या है, इनका किस टाइम सोते हैं, ये वाली कौम किस टाइम सोती है, किस टाइम जागती है, क्या रूटीन है इनकी, ठीक है। इसी तरह से डाटा गैदरिंग में भी यही होगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन या उस डिवाइस से इनकमिंग आउटगोइंग कौन सा डाटा है, फिर उनमें से कौन सा डाटा है जिसके ऊपर उससे सिक्योरिटी अप्लाई की हुई है, कौन सा जो प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है, कौन सा इनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है, किस डेटा के ऊपर अटैक करके, किस स्पेसिफिक पैकेट के ऊपर अटैक करके उस ऑर्गेनाइजेशन, उस मशीन को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। वो रास्ता ढूंढने के लिए पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग ज़रूरी है। तो वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग साइबर सिक्योरिटी के अंदर कैसे की जाती है, कौन सी टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है, हम उसको भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे, ठीक है। उसके लिए फिर हम लोग उसके बाद जब आपका ये सारा काम हो जाएगा, तो फिर एट द एंड फिर हम आपको फाइनल की क्लास जिसमें हम बताएंगे कि CCNA एग्ज़ाम के लिए आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है, ताकि आप इंटरनेशनल अगर कोई सर्टिफिकेशन लेना चाहता है तो उसके लिए फिर आप स्ट्रेटजीज बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। कुछ रिसोर्सेज, कुछ डंप्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हैंड्स ऑन लैब्स तो हमने ऑलरेडी की होंगी, उसकी एक्सटेंडेड फॉर्मेट्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, और फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह और कुछ प्रैक्टिसेस होंगी। सो ये एक वे होगा, ये एक सिनेरियो होगा जिसकी को यूज़ करते हुए इस रोड मैप को हम लोग अपने इस पूरे कोर्स को लेके चलेंगे, और इस तरह से हमारा ये तमाम तर 4 मंथ्स के अंदर हमारा ये स्केड्यूल रहेगा। आई होप सो आप लोगों को चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होंगी, क्योंकि मैंने बड़े सिंप्लीफाइड वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कुछ लोग जिनको मज़ीद अभी तक कन्फ्यूजन हैं, तो वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। लाइक आप में से कुछ लोग जो न्यू हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं वो भी, और जो ऑनलाइन में से जैसे मैक्सिमम तादाद में नए लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। तो नाउ इट्स टाइम्स फॉर क्वेश्चन आंसर्स, or any further thing if you want from me to elaborate and explain for you in the context of network security and the cyber security, I can. And apart from that, if you have specific question or any of the concept which you have missed, or which you want from me to repeat, then go ahead and start asking. I am here to listen all of you. So first raise your hand if anyone want to ask. जी आप बताएं, पहले फिजिकल स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हम सुन लेते हैं, फिर उसके बाद ऑनलाइन की तरफ आते हैं। सर फिजिक्स का आपने जो कहा है वो एक डिफरेंट चीज़ नहीं है, अगर वो CEH के साथ भी होती है ना जी, तो उसका तो बिल्कुल एक कोर्स भी डिफरेंट है जी, लाइक अभी जो एक और टीवी करना है वो मेनली तो उनके उन्होंने ना मतलब बाहर जो है ना सिस्को सेंटर के अंदर थी क्योंकि उन्होंने जो मांगी थी उन्होंने 3 चीज़ें मांगी थी, CCNB और CEHP उन्होंने जो है ना उनसे वो मांगी जी। सो उधर थोड़ा सा बताया था कदम कि जब ये कर लो CCNB बोलो तो फिर लिनक्स और CEHP जो है ना वो करना तो जो भी लिंक है आपको सही बहुत ज़्यादा नेटवर्क्स के अंदर जो लोग होते हैं ना, हम खुद भी, हम ज़्यादातर जो है वो सिमुलेशन और इसके अलावा जो हम जिन जिन लैपटॉप्स को लेकर डिप्लॉयमेंट्स के लिए जाते हैं, उनके अंदर हमारा लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। और यहाँ पे विंडोज़ के अंदर भी हम लोगों ने इसकी वर्चुअलाइजेशन की हुई है। मैं आपको अगर दिखाऊँ तो मैंने डिफरेंट फ्लेवर्स यहाँ पे मैंने इसके अंदर विंडो के अंदर ही किए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिनक्स के 2 फ्लेवर्स हैं, एक ubuntu सर्वर है, ठीक है, और एक डेस्कटॉप मशीन है, ठीक है। एक जो है वो 24.04 है, 20.04 है, 2 डिफरेंट ये मशीन्स हैं। तो अब जो आपका अच्छा इनका क्वेश्चन में, ताकि ऑनलाइन लोगों को भी इंगेज रखूँ, इनके लिए इनका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि
इनके कोई फैमिली मेम्बर सिस्को सेंटर के अंदर उनकी जॉब हुई है, जहाँ पे उनके रिक्वायरमेंट ये थी कि आपके पास CCNA CCNP और उसके साथ साथ CEH का नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए फिर आप CEH के लिए कह रहे हैं कि लिनक्स, तो दैट्स वाई इसी चीज़ को जहन में रखते हुए मैंने आप लोगों को ये साथ साथ लिनक्स का भी ओवरव्यू दिया है और आपके कोर्स का पार्ट हिस्सा बनाया है, ताकि आप जब CEH की तरफ जाएं तो अब जब जितने मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा इस कोर्स के अंदर ही, तो आप लोग रोड मैप मिल जाएगा। कोई भी चीज़ होती है उसकी एक बेसिक किक चाहिए होती है, उसके बाद बंदा खुद भी एक्सप्लोर कर लेता है। तो अब ये जो मैंने इसका पार्टिसिपेट इसलिए बनाया कि इसमें अगर आप इंडिविजुअली अलग कोर्सेज परचेज करने के बजाय आपको एक रोड मैप मिल जाए, आप इसको एक्सप्लोर कर सकें। और जो नेटवर्क्स के अंदर काम करने के लिए आपको जितना लिनक्स का नॉलेज चाहिए होगा, वो सारा नॉलेज आपको अलग से कोर्स लेने के बजाय मैं इसके अंदर ही प्रोवाइड कर दूंगा। सो फॉर दैट्स वाई जी जी एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली हम लोग भी ये इस ऑर्गेनाइजेशन में भी आप बाहर जाके देखें ना वाउचर्स, तो रेड हैट के अलग से हैं, ठीक है, यूबंटू के अलग से हैं, और CCNA CCNP CCNA सिक्योरिटी अलग से हैं। तो मैं इन तमाम तर चीज़ों को, चूँकि मेरे पास इतना बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं आप लिनक्स के कोर्सेज करवाएं, आप सर्वर्स के करवाएं, तो मेरी अपनी बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, फॉर द टीचिंग में इतना ज़्यादा टाइम में पास नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों को जहन में रखते हुए, चूँकि असल हम इस प्लेटफॉर्म में जो बैठे हुए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा जो मकसद है फॉर बिजनेस नहीं है, बल्कि यंग जनरेशन को, मैं खुद रिसर्चर हूँ बेसिकली, यंग जनरेशन को तैयार करना है फॉर द मार्केट। और पाकिस्तान, चूँकि हम ये चीज़ इसलिए कि मैं ज़्यादातर रिमोट जो है ना मीटिंग्स का पार्टिसिपेट होता हूँ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के अंदर, वहाँ पे इंडियंस जो हमारे साथ हमारे भाई हैं वो इतना आगे जा चुके हैं हम सोच नहीं सकते। तो मैं इसी चीज़ को जहन में रखते हुए, जस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, फॉर गिविंग एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, एक कंट्रीब्यूशन नवाज शरीफ शहबाज शरीफ भी दे रहे हैं, खुद खा खा के बाद में कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए ये किया और वो किया, या फिर नून लीग या PTI या बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, मैं किसी एक को नहीं कह रहा। तो एक हम भी छुप के दे रहे हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है अल्लाह के नज़दीक कौन सा कबूल होती है ये चीज़, ठीक है। तो जो हमारे उस्ताद मोहतरम थे उन्होंने भी हमें यही चीज़ सिखाई जिनसे हमने नेटवर्क सीखा, तो वही चीज़ हम उसी को फॉलो करना चाह रहे हैं। तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स बेसिकली उनको टेक्नोलॉजी अवेयर करना। हम यहाँ पे आपको एक्सपर्ट नहीं बना सकते, हम आपको यहाँ पे एक रोड मैप दे सकते हैं। आप नेटवर्किंग या आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूनिवर्सिटीज़ में सीखते हैं, तो टीचर्स आपको जस्ट उसका सिंटैक्स और उसको इस्तेमाल करना सिखाते हैं। अब डिपेंड आप पे कर रहा होता है आप उसको कितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से आपका नाम मैं भूल गया हूँ, मुदस्सिर, मुदस्सिर से मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहा था। हालांकि इनका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नेटवर्क साइड का नहीं था, लेकिन इन्होंने नेटवर्क्स के अंदर जॉब कर रहे हैं, बड़े अच्छे लेवल के ऊपर ये जॉब कर रहे हैं। तो अब जो जिस पोजीशन के ऊपर इन्होंने जॉब कर रहे हैं, इनके साथ मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको इतना अंदाज़ा नहीं होगा इन डिवाइसेस का, लेकिन ये इनको खुद अपना इंटरेस्ट हुआ होगा, तभी इनको वो प्रोटोकॉल जो चीज़ें यहाँ पे आने से पहले काफ़ी हद तक उनका नॉलेज है, अब उनको डीपली ये करना चाह रहे हैं। ऐसा ही आपके साथ के कुछ लोग होंगे जिनको उस लेवल का नॉलेज नहीं होगा, उतना ज़्यादा एक्सपर्टीज़ जो कि आपने पिछले 6-7 या 4-5 मंथ्स के अंदर एक्सप्लोर किए हैं। तो ये इसीलिए अब मैं पढ़ा रहा तो सब कहूँगा, आप में से कुछ लोग इंशाल्लाह यहाँ से निकल के CCI भी कर रहे होंगे, और कुछ लोग यहाँ पे एक हफ्ते के बाद जो है ना यहाँ से भाग रहे होंगे। तो इसलिए पहली चीज़ मैंने प्री रिक्विजिट यही बताया था, कंसिस्टेंसी, ठीक है, ये बड़ी ज़रूरी है इस फील्ड के अंदर। तो अच्छा, अब आपके क्वेश्चन की तरफ भी मज़ीद आ जाएँ। ये देखें, ये बेसिकली लिनक्स का एनवायरनमेंट आ जाता है यहाँ पे, ये CLI के ज़रिए तमाम तर चीज़ें आपकी मैनेज हो रही होती हैं। तो इसमें आप हर चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं कमांड लाइन पे। तो ये कैसे सेटअप करना है, इसके अंदर क्या क्या बेसिक कमांड्स आपने यूज़ करनी है, ये तमाम तर चीज़ें आई विल बी एक्सप्लोरिंग इन फ्रंट ऑफ यू एज वेल, ठीक है। तो लिनक्स जो आप पूछना चाह रहे थे, क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका? मज़ीद आप जी मुदस्सिर, आप क्वेश्चन पूछें, आपको बड़े इंटरेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें अगर? क्लियर है चीज़ें? गुड जी। मज़ीद जी पूछें और कोई लोग? जी, उसके लिए मैंने बताया कि जिस तरह से आप इस कोर्स को जब कवर कर लेंगे, एट द एंड आपको डंप्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रिपरेशन प्रॉपर गाइडलाइंस दी जाएंगी, यहीं से ही आपका वोचर वगैरह अप्लाई किया जाएगा। आप अगर देना चाहें यहाँ से, इसी प्लेटफॉर्म से हम पेपर वगैरह भी इंटरनेशनल भी करवाते हैं, लेकिन लोकल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर हम आपको जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी इनफ फॉर यू गाइस, ठीक। तो जी मज़ीद
जीद ऑनलाइन वाले लोगों में से कोई क्वेश्चन? You raise your hand first so that I might know कौन क्वेश्चन पूछ रहे हैं. जी मंसूर अली, आपका कोई क्वेश्चन, आपको कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो या रोड मैप आपको क्लियर ना हुआ हो तो पूछ सकते हैं. नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है, बातें समझ आ गई हैं जो आपने की है. सर आपकी आवाज़ आ रही है? आवाज़ नहीं आ रही है. सर आपको आवाज़ आ रही है मेरी? क्वेश्चन बोलें ज़रा, क्या क्वेश्चन किया मंसूर ने? सुने क्वेश्चन मंसूर का और मुझे बताएं. मंसूर क्वेश्चन करें आप प्लीज़. सर क्वेश्चन कोई नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक है, बात मुझे समझ आ गई है. और बस एक ये क्यूरी थी मेरी कि ये जो ये जो CCNA का जो सर्टिफिकेशन के लिए आपने इन बेसिकली तो CCNA का बैच है ना ये, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि वो CCNA सिस्को की तरफ से सर्टिफिकेट होगा कि वो आपकी तरफ से होगा, सिस्को का होगा? CCNA आफ्टर दिस आपके जो सर्टिफिकेट यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा वो लोकल सर्टिफिकेट होगा, सिस्को की तरफ से नहीं होगा, वो सिस्कॉम की तरफ से होगा. For the international certification, you will have to apply on the Cisco official website, and you will have to get the access of the voucher, and then the international date will be announced for the paper, and you will appear on the paper, and then you will attempt the paper. You will have to get 85% plus marks, and then you will actually got the certification. This will be the scenario. But those are the things to discuss later. Initially, we'll have to explore the concepts first. Once you will have concept, when you will have roadmap, when you will have detailed knowledge, then I think so no need for certification. Even getting any of the level job in Pakistan, but once you are going abroad or any of the Gulf country, so for that you can apply for the certification because those countries, those companies required international certification. But for Pakistan, you can show over certification, over provided certificate as well. That will be enough for you. And the one of the major and important thing is that you can purchase that certification as well. So getting certification is not a difficult thing. Even at this stage you can purchase the certification. Many of the people who don't even know the concept of the networks, they have purchased the certification, but once they go for interview, what will be they explain? So important thing is that certification doesn't matter, but the knowledge matters. ये ऐसी फील्ड है जब आप इंटरव्यू सर्टिफिकेट दे के आपको जॉब मिल जाएगी, जाके कहेंगे भाई वो स्विच निकालो, उसके ऊपर वीलैंस बनाओ, उसके ऊपर प्रोटोकॉल अप्लाई करो, पता ही नहीं होगा तो करोगे. इसलिए नॉलेज होना ज़रूरी है. आप नॉलेज से इंटरव्यू में अगले बंदे को सेटिस्फाई कर सकते हो, लेकिन सर्टिफिकेशन से नहीं आप उसको सेटिस्फाई कर सकते. तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू गेट नॉलेज एंड एक्सप्लोर द कम्युनिकेशन चैनल एंड द प्लेटफॉर्म इन डिटेल. सो मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास 3 मंथ्स के अंदर अंदर यहाँ पे अभी स्विचिंग करके जा रहे होते हैं. उससे पहले उनकी जॉब्स हो जाती हैं इंडस्ट्री में एंट्री लेवल CCNA के अंदर, और कुछ इंटर्नशिप्स के लिए चले जाते हैं, और कुछ जो अगर रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं वो फिर अपनी एजुकेशन को साथ कंटिन्यू करते हैं. तो यहाँ पे आपको जब मुख्तलिफ़ तरह की जॉब्स आती हैं, जब आप इतने मेच्योर हो जाएंगे, आपको हैंड्स ऑन के लिए आपको डिफरेंट तरह की जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी. आप सब लोग ये जो कायद-ए-आज़म वाले हैं ज़्यादातर, आप अपनी अपनी लिंक्डइन आईडीज़ बनाएं, लिंक्डइन उसको ग्रो करें. जो हम काम किया करेंगे, जो हम प्रैक्टिकल किया करेंगे, सभी को कह रहा हूँ, आप फिजिकल आप लोग भी, ठीक है, आप अपना कनेक्शंस बनाएं, अपना आप अपनी पहचान बनाएं. लिंक्डइन का आइडिया है सब लोगों को ना? इसके ऊपर जो है ना, आप जो भी काम करें, जो भी लैब्स करें, जो भी आप प्रैक्टिकल काम करें, उसको आप वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे. टुडे आई एक्सप्लोर दिस, टुडे आई एक्सप्लोर दिस. इट विल बेसिकली make your connection to some international project suppliers, some those people who are from the same industry. You will be going to connect all of those, so that once if they need you for any of their project, for any of their deployment, they will help you.
ठीक है। और इसके अलावा आप इस तरह से इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स विन कर सकते हैं। आप जिस तरह से लोग फाइवर वगैरह आप करके ऊपर काम करते हैं, इस तरह से लिंक्डइन के ज़रिए भी आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपको असाइन किए जा सकते हैं। तो आप अपनी प्रोफाइल को ग्रो करें, उसके ऊपर आप लोग काम करें, और जो भी प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आप इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड रहेंगे। और जो लोग यहाँ पे 7th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर के हैं, वो लोग जैसे ग्रेजुएट होंगे, आप लोग फ़ौरन से आप इंडस्ट्री में इंशाल्लाह इंडस्ट्री का पार्टिसिपेट बन जाएंगे, और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे इंडस्ट्री इंडस्ट्री में इन होने के लिए। एंट्री लेवल इन द नेटवर्क्स फील्ड, जस्ट द एंट्री लेवल जॉब इज़ बिट डिफ़िकल्ट। जब आप इंटर हो जाते हैं, एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाता है, फिर आप ग्रो करते जाते हैं इस फील्ड के अंदर। इस फील्ड ये नॉन स्टॉप फील्ड है, जितना आप कमाना चाहें, जितना आप नॉलेज को इन्हेंस करना चाहें उतना कर सकते हैं। एक तो डिप्लोमाज और भी होते हैं सेफ्टी के, इस तरह के डिप्लोमाज करके लोग बाहर जाते हैं। ये वो फील्ड नहीं है, ये वो फील्ड है जिसमें आप नॉलेज भी एक्सप्लोर करते हैं और साथ अब मनी भी, दोनों चीज़ों के लिहाज से ये आपके लिए हेल्पफुल है। और अगर आप जो लोग FSC के बाद नेटवर्क्स फील्ड में सर्टिफिकेशन की साइड पे आ जाते हैं, तो फॉर योर स्टूडेंट्स, फॉर योर मोटिवेशन, CCNA CCNP is almost equivalent to your graduation, and CCI is equal to your PhD। जो लोग नेटवर्क्स के अंदर CCI कर लेते हैं, इंडस्ट्री के वो PhD के बराबर होते हैं, उस लेवल का उनके पास नॉलेज होता है। लेकिन ये 3 लफ्ज़ कहना तो 3 सेकंड भी नहीं लगे, लेकिन इसके लिए क्या पता सदियाँ गुजर जाती हैं, ठीक है। तो कहना आसान होता है, तो ये चीज़ है, ठीक है। इस तरह से आप लोग अपना इस रोड मैप को फॉलो करें। ये तमाम तर लोगों की मोटिवेशन थी। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट रिमेन कनेक्टेड। तो कनेक्टेड रहने के लिए और कंसिस्टेंसी के लिए मैंने आपके लिए 3 प्लेटफॉर्म्स बनाए। सबसे अच्छा, सबसे बेहतर फिजिकल अपीयरेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे आप जो लोग सामने बैठे हुए हैं, 20, 25, 30, 40 लोग जो सामने बैठे होते हैं, उनको ऑब्वियसली सबसे अच्छी समझ आती है, क्योंकि फेस टू फेस सबसे अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन आप लोग लाइव क्लासेस में आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, और आपसे मैं भी क्रॉस क्वेश्चंस किया करूँगा क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, नंबर 2। एंड नंबर 3 इज़ दैट कि अगर आप फिजिकल नहीं आ सके किसी प्रॉब्लम से, या जो लोग हैं दूर फिजिकल आते ही नहीं है, वो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, रिमोट लोकेशन से बैठ के। लेकिन जो ऑनलाइन भी नहीं आ सकते, उन लोगों के लिए फिर सबसे अच्छा और सबसे हेल्पफुल चीज़ ये है कि आप लोगों के पास ये रिकॉर्डेड सेशन मौजूद होगा। इस स्काइप के ऊपर जो हम क्लास करते हैं, ये तमाम तर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे ही क्लास एंड होगी, मैं इसको यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगा, ऑटोमेटिकली आपके ग्रुप में ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी। आप बाद में कोई कंसेप्ट, कोई कॉन्फ़िगरेशन, कोई चीज़ अगर नहीं समझ आई, आप उस जगह से जाके दोबारा इससे को सुन सकते हैं, उस कंसेप्ट को दोबारा एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड लेटर ऑन वाइल डिप्लॉइंग द प्रोजेक्ट्स इन इंडस्ट्री, अगर आप किसी सेम प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर रहे हैं और उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो भी आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। इसलिए कि आप उस सेम रिकॉर्डिंग को ओपन कर सकते हैं और देखेंगे कि इस टाइम के ऊपर यहाँ पे अगर ये प्रॉब्लम थी, प्रोटोकॉल काम नहीं कर रहा था, तो मैंने ये वाला जो है ना उसके ऊपर एडिशन की थी, ये ट्रबल शूटिंग की थी। तो ट्रबल शूटिंग के दौरान भी इन वीडियो लेक्चर्स को आप अपने पास स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। So this is all from my side about this introductory lecture and apart some like webinar. I hope you guys have enjoyed it, and I hope that it would not be boring तो नहीं था ये, इंटरेक्टिव था, समझ लगी, रोड मैप मिल गया, जिस पर्पज़ के लिए आप लोग आए थे यहाँ पे इकट्ठे हुए। आई होप सो आपको मिला होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से ये जो हम लोगों ने आज क्लेम्स किए हैं, जो हम लोगों ने दावे किए हैं, इसको अब प्रैक्टिकली इसको अमली जामा पहनाने जाएंगे, जहाँ पे हम OSI मॉडल से इसका आगाज़ करेंगे। तो आई होप सो आप सब लोग नेक्स्ट क्लास से हमें इसी तरह से कंटिन्यूसली ज्वाइन करते रहेंगे, और एट द एंड फिर अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछें, अदरवाइज वी कैन क्लोज दिस स्पीच। चलें जी, आई होप कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।